This is our chapter 6 presentation. You must be thinking that what about chapter 3, chapter 4 and 5? All the three chapters are based upon the practical, so we are just going through our chapter 6, which is internet services. So let's get started. So here is the learning outcomes of this chapter. The first one is the basic terms of the internet, the very important classifications. The second one will be the internet services, what actually the internet services are meant to use. The third one is ways to connect to internet. We just know how to use the internet, but there are many other ways to connect to the internet. So we are going to see in this presentation. The very first and common term, that is browser and search engine. I just want to ask question. Just please don't read the slide. Just try to just think that what is actually the difference between search engine and browser. So earlier time I also used to confuse कि actually इन दोनों में फ़र्क होता क्या है. So here is the difference between the students who know, that is very good, and the students who don't know, doesn't matter. Just try to understand in very simple example. Browser. A web browser is an application software for accessing information on World Wide Web, and search engine is a specialized software used for searching information on World Wide Web. अब ये तो मैम ने डेफिनेशन पढ़ दिया. नो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बता रही हूँ. ब्राउज़र इज़ लाइक जो भी हमारे कंप्यूटर में, पीसीज में या टेलीफोन्स में जो गूगल क्रोम है या ओपेरा है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिनको पहले हम खोल करके फिर उसके बाद उसमें गूगल, याहू, bing.com या कोई भी साइट्स अगर हमें खोलने होते हैं, तो जिन एप्लीकेशंस को वी यूजुअली ओपन फर्स्ट, दैट इज़ गूगल क्रोम. वी मतलब फ्रिक्वेंटली और बहुत ही कॉमनली हम लोग गूगल क्रोम को ही यूज़ करते हैं, या फिर ओपेरा in our phone or internet explorer also. So what we just the difference is, जो पहला चीज़, जो पहला एप्लीकेशन जो हम खोलते हैं, जो गूगल क्रोम खोलते हैं, दैट इज़ द ब्राउज़र, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिनकी वजह से हम एक्सेस कर सकते हैं आगे की चीज़ें. फिर उस गूगल क्रोम के खोलने के बाद जो हम लोग सर्च इंजन टाइप करते हैं, जैसे गूगल खोलते हैं हम लोग, याहू खोलते हैं कुछ सर्च करने के लिए, सो दैट इज़ द सर्च इंजन जो हमें इंफॉर्मेशन सर्च करके प्रोवाइड करता है. इट कैन बी गूगल, याहू, विकीपीडिया और डिफरेंट जो बिंग हैं, ask.com है, बहुत सारे सर्च इंजन हैं. सो वी विल जस्ट डिस्कस दिस ऑन आवर नेक्स्ट क्लासेस. So here is the difference between browser and the search engine. Please keep in mind, and as this is not in our syllabus, but this is a learning point for you all. So if I'll ask in the classroom, every student should know this answer. Now here we start from our very first topic, that is internet services. As the word just explain us the meaning, internet services. इंटरनेट की सर्विसेज से हम लोग को क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज करने को मिलती है, दैट इज़ देयर इन द डेफिनेशन. दैट इज़ इंटरनेट सर्विसेज अलाउ अस टू एक्सचेंज और एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट लाइक text, images, videos, music, softwares, etc. It can be categorized into 4 different categories. So first of all, internet services allow करता है हमें text, images, videos और इन सब चीज़ों को शेयर कर सकते हैं हमें इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ करके. उस the 4 different categories which we use to categorize is communication service, information service, web service, word wide service. So very first is communication service. Communication means verbal, written या कैसा भी, वीडियोस, इमेजेस करके हम लोग कुछ भी कम्युनिकेशन इफ़ वी डू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. टुडे वी यूज़ very much internet in communication, like we do video calls, we do audio calls, also use of different types of applications in our phones, also in our computer also. Second is information retrieval. Information means by doing the emails, by sending the messages, text, we get information from other person इन फ्रंट ऑफ अस, जो भी हमारे सामने है, जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए. वी यूज़ टू, पहले हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, फिर उनसे हम सारा इन्फॉर्मेशन
टेक्स्ट के रूप में या किसी भी डॉक्यूमेंट के फाइल में, वी जस्ट गेट इट. थर्ड इज़ वेब सर्विसेज. हम लोग वेब सर्विसेज इंटरनेट से कर सकते हैं. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट यूज़ ऑफ इंटरनेट कि हमें वेब सर्विसेज, जैसे इंटरनेट में कुछ भी सर्विस लेनी है, गूगल खोलना है या याहू करना है, हमें कोई भी साइट्स चलानी है, तो वी जस्ट यूज़ इंटरनेट ओनली. फोर्थ इज़ वर्ल्ड वाइड वेब. इट मीन्स, अब आप सोचोगे वेब सर्विसेज एंड व्हाट इज़ डिफरेंट विथ वर्ल्ड वाइड वेब. सो इट इज़ ओनली डिफरेंस कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको पूरे ग्लोबली हम लोग करें. डिफरेंस इज़ वो वेब सर्विसेज हम लोग अपने अंतर्गत में एक लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर तक हम वेब सर्विस को उसको एक्सेस करते हैं, उसकी चीज़ों को पता करते हैं, सेव करते हैं, डाउनलोड, अपलोड, ये सब. इन वेब सर्विसेज ग्लोबली, मतलब हम फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, सो वी विल जस्ट हमें इसको इंटरनेट में बढ़ाना है या कुछ करना है, ग्लोबली उसको पूरी तरीके से फैलाना है, एक्सप्लोर करना है अपने बिज़नेस को, तो वी टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली. उसी की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैला सकते हैं सब जगह, ताकि हमारे बिज़नेस को सब जाने. नॉट ओनली बिज़नेस, हमें कुछ भी करना है, हमें अपने कुछ ब्लॉग्स जो हैं शेयर करने हैं या फिर कुछ भी शेयर करना है, वी जस्ट यूज़ वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज. So this is all about internet services which we use. Here one word is there, information retrieval services. Don't confuse with this word. Retrieve करना मतलब किसी से वो receive करना, consume करना. तो information retrieval services, the same meaning is this. So I hope this topic is very much clear. अगर 4 different categories आता है, so we have to just point internet services has 4 different categories: communication service, information, web services, and world wide web. That's it. Our next topic will be the ways to connect to the internet. So there are basically 3 ways to connect to the internet. First is dial-up connection, second is broadband, and third is wireless. Under wireless we will also study hotspot, which we usually taking help of our parents to study this type of presentation. So एक क्विक सा आपको एक सम अप बता देते हैं. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायल अप एंड ब्रॉडबैंड इज़ दैट कि डायल अप बहुत ही पुराने टाइम का कनेक्शंस हैं एंड ब्रॉडबैंड इज़ न्यूली फॉर्म ऑफ डायल अप. ऐसा कुछ चेंज नहीं, बस उसमें क्या है, क्विक हम लोग इन्फॉर्मेशंस हैं, वीडियोज़ हैं, क्लिप्स हैं, ये सारे क्विकली हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं. डायल अप इज़ फुल्ली वायरलेस, वायर के साथ जो काम होता है वो डायल अप में होता है. ब्रॉडबैंड इज़ ऑल्सो वायरली जो वर्क होता है, ब्रॉडबैंड इज़ ऑल्सो वायरली वर्क, बट सम ब्रॉडबैंड आर वायरलेस ऑल्सो. बट वायरलेस, दैट इज़ वाईफाई इज़ टोटली वायरलेस, उसमें हमें कोई भी तार की ज़रूरत नहीं होती है, वायर की कोई ज़रूरत नहीं होती है. हॉटस्पॉट वी यूजुअली नो, we just open one net and we used to connect different other system with that internet connection. So now let us see what are the explanation of all 3 ways to connect to the internet. So the very first is dial-up. This service of internet allows connecting to the internet through a standard telephone line by connecting the telephone line to the modem in our computer. So जैसे कि we can just understand by the line, that is by just using the telephone line the connection we can establish the internet connection to our computer. The more thing to be understand is by connecting and dialing a specific number provided by your internet service provider. जो भी हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी हमारा है, वो एयरटेल है, ब्रॉडबैंड है, बीएसएनएल है, जियो है, मतलब रिलायंस है, जो भी हम कनेक्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ले रहे हैं, वो हमें एक स्पेसिफिक नंबर देते हैं जो कि हम टेलीफोन से व्हेन वी यूज टू डायल वी गेट द कनेक्शन. और वो टेलीफोन इज़ वर्किंग, इंटरनेट इज़ वर्किंग. बहुत सारा टाइम वेस्ट है, स्लो बहुत होता है डायल अप, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में पहले के टाइम पे इसको यूज़ किया जाता था बिकॉज़ वो धीरे धीरे अपना काम आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट जनरली अब डायल अप का बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ है. द बेसिकली यूज्ड इंटरनेट सर्विसेज इज़ ब्रॉडबैंड ओनली. सो फर्स्ट वी विल सी दिस डायल अप कि किस तरीके से हम एक डायल स्पेसिफिक नंबर करते हैं, हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होती है. दिस इज ओनली द डायल अप, द मीनिंग ऑफ डायल अप. Requirements for dial-up connections.
दे आर 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर डायल अप कनेक्शन. हमें सबसे पहले तो कंप्यूटर ऑब्वियसली एक चाहिए क्योंकि हम कंप्यूटर से ही कनेक्ट कर रहे हैं. अ मॉडम, एक मॉडम होना चाहिए हमारे पास, एंड ए टेलीफोन लाइन. एक टेलीफोन लाइन, क्योंकि टेलीफोन है तो टेलीफोन लाइन की ज़रूरत पड़ेगी. In the very next slide you will be seeing the modem and the telephone line picture, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा कि how the wires are connected to this modem, this telephone line and the computer. इन तीनों चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है. So here is the picture of the two devices, that is modem and the telephone line. This is the modem and this is the telephone line. ठीक है, आप देख रहे हो यूएसबी केबल जो एक होल है जिसमें हम लोग टेलीफोन की लाइंस को उसको ऊपर से दबा के, एंड वी यूज टू इंसर्ट दिस वायर इन द टेलीफोन ऑल्सो. और ये दिस वायर इज द लिंक बिटवीन द मॉडम एंड द कंप्यूटर. इससे हम लोग टेलीफोन का वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं, मॉडम का भी कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर मॉडम का वायर हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है. सो दिस इज हाउ वी जस्ट get the internet services access in dial-up connection. So in this we use lots of wire, lots of energy, और हमें बहुत slowly भी नेट मिलता है as comparison to broadband. ब्रॉडबैंड से ये स्लो रहता है. तो दिस इज ओनली द डायल अप कनेक्शन, जिसमें टेलीफोन लाइन को यूज करके उसके स्पेसिफिक टेलीफोन नंबर को डायल करके वी विल गेट द इंटरनेट सर्विसेज. The second one is broadband. It is a fast medium to connect to the internet. It allows user to download video clips and musics, send emails, faster and quickly process everything that is done online. जो भी ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, डाउनलोड अपलोडिंग, चाहे वो वीडियो है, म्यूज़िक है, मेल्स है, या कुछ भी है, फ़ोटोज़ हैं, कुछ भी हैं, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही क्विकली एंड फास्टर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं. Same three things are required: computer obviously, a modem or a router, and a phone line. इसमें भी तीनों चीज़ की ज़रूरत होती है. As you can see in the picture, this is how the connection has been made. अगर फ़ोन ठीक से इज़ नॉट वर्किंग, फिर भी जो राउटर है या मॉडम है उसको वो बैलेंस करके उसकी स्पीड को मेंटेन करता है, सो दैट आवर वर्क कैन नॉट बी स्टॉप्ड और कैन नॉट गो स्लो. सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन डायल अप एंड ब्रॉडबैंड. इसका एक और ब्रॉडबैंड का एक फीचर है विच यू विल बी एबल टू सी इन द नोट, दैट इट कैन बी वायरलेस ऑल्सो एंड इट कैन वायरली ऑल्सो. ये दोनों तरीके से किया जा सकता है. उसका एक एडवांस तरीका है, टेक्नोलॉजी है, कुछ अलग अलग अडेप्टर्स हैं जिसको यूज़ करके वी कैन जस्ट डू दिस वेरी क्विकली. Is the last way to connect, that is Wi-Fi, and we all know very well it is a name of popular wireless networking technology that uses radio waves to provide wireless high speed internet and network connection. जो रेडियो वेव्स होते हैं, दी वेव्स विच वी कैन नॉट सी, और उसको हम लोग फील भी नहीं कर सकते एग्जैक्टली, बट इर्द गिर्द हमारे वो वेव्स रहते हैं हमेशा. व्हेन वी वॉट, हमेशा ही रहते हैं. आइदर वी टॉक इन दी टेलीफोन ऑल्सो, वी यूज़ इंटरनेट ऑल्सो. वो रेडियो वेव्स हैं, वेब की तरह, जाल की तरह फैले हुए हैं, जिनको यूज़ करके इतनी हाई टेक्नोलॉजी है कि हमें हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है विदाउट एनी इंटरप्शन. नो वायर इज़ नीडेड एंड नथिंग. जो हैशल्स हो जाते थे, अरे ये तार इसको यहाँ छुपाओ, उसको वहाँ रखो, ये पैर में फंस रहा है, हाथ में फंस रहा है, दैट इज़ नॉट इन द वाईफाई. रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाईफाई कनेक्शन इज़ अ कंप्यूटर ऑब्वियसली, वाईफाई राउटर और अ मॉडम. हम लोग कह सकते हैं वाईफाई का राउटर और मॉडम अलग होता है. एंड द थर्ड इज़ वाईफाई अडेप्टर. इन द पिक्चर यू कैन सी द 300M वायरलेस USB adapter. Here it is written Wi-Fi also. So ये अडेप्टर क्या है, जस्ट वी टेक कनेक्शन. जो भी हमारा वाईफाई का राउटर है वो कहीं पे हमने प्लेस कर दिया है घर पे, एंड दिस राउटर इज़ कनेक्टेड. इसको हम लोग अपने जो भी लैपटॉप है, पीसीज हैं, उसके जो USB का पॉइंट होता है उस पर वी जस्ट इंसर्ट एंड आर वाईफाई स्टार्ट वर्किंग. अगर हमारा जो मॉडम है, राउटर है, थोड़ी दूरी पे लगा हुआ है एंड वी यूज इट अडेप्टर, तो ऐसा नहीं है कि दूर है तो वो बफर होके चलेगा, स्टॉप होके चलेगा, विच वी यूजली सी इन आवर होम, कि भाई ऊपर वाले कमरे में नहीं पकड़ रहा है, नीचे वाले कमरे में. सो दिस इज़ नॉट हैपन विद दिस अडेप्टर. व्हेन वी यूज दिस अडेप्टर, everywhere the some space, some meter is there which is fully covered by this Wi-Fi. तो आपको थोड़ा सा भी रुकावट नहीं होगा आपके इंटरनेट सर्विस को यूज़ करने में, एंड वेरी फ्रिक्वेंटली विथ
no use of wire, you can do this for very smoothly. The one सब part of this wireless, that is hotspot, जो कि आजकल हम लोग अपने मम्मी पापा का, भाई बहन का हॉटस्पॉट लेके अपना लैपटॉप या अपना फ़ोन कनेक्ट करके वी आर जस्ट सीइंग द वीडियो प्रेजेंटेशन एंड ट्राइंग टू सॉल्व द वर्कशीट. सेम थिंग इज दिस. Wireless or Wi-Fi hotspot are used to publicly connect our mobiles, laptops or smartphones on internet wirelessly. बिना किसी वायर के we just connect. Some mobiles and smartphones also act as Wi-Fi hotspot. As you can see in the picture, one computer is there. For example, ये हमारा मेन कंप्यूटर है, इसका हम लोगों ने नेट ऑन कर दिया है. एंड दी अदर टैब्स एंड स्मार्टफोन्स, नॉर्मल फोन्स आर देयर, जो उस वाईफाई से कनेक्ट हो गए हैं. उस रेंज के अंदर ये लोग बैठे हैं, उसी रेंज पे इन लोगों को अच्छे से हमारा स्पीड इंटरनेट का मिल रहा है. एंड दे आर गेटिंग द इंटरनेट एक्सेस, वो अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को. So this is what this picture explain, and I hope this is very much clear to you all students, because you all are very much familiar with these words, and this is only the word definition which I am just explaining you, and which you have to learn, which is very important. And always try to do the difference between Wi-Fi and hotspot. Don't get confused between two. Okay, here is the end for this 3 topics only, not this chapter. We have many much new things to be learned in this chapter, and this is very interesting also. You'll be also very interested to learn अब आगे क्या आएगा. So till then, the worksheets and the notes are attached with the presentation. Just go through it, try to solve. If any confusion is there, write down on the notebook, so whenever the school will reopen, we will just discuss your problems also. And till then, just stay home and stay healthy.